یہ بتائیے سر کہ آج کافی ایک اہم پیغام یہاں سے گیا ہے اس اسٹیج کے ذریعے، ایک تو یونٹی اور عالمی حالات پر بھی نظر دوڑائی گئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Imam Hussein alayhi salam sacrificed for humanity, for human being, for dignity, for freedom, for justice. These virtues are for all human beings. So Imam Hussein can be the access for unity between all human beings and against the oppressors. We hope that everyone benefit a lot of lessons from Imam Hussein alayhi salam and support poor people, support the community and bring justice in the society. So current happening, so what will be the solution or how the crisis will be solved? So in the light of Karbala. Actually, the battle of Karbala is not finished. Still, we have battle of Karbala, but in different places. So, as Imam Hussein alayhi salam said, never I submit myself to injustice. We should also do that. The lesson of Imam Hussein is that you have to try to bring justice in the society and be against the oppressors. So how do you see the stage in Bangalore? Actually, today it was... Is it first time here? Yes, it was my first time I'm here, and I enjoy a lot. I love it because there were a lot of people from different religion, from different sects, and they spoke about what is in their mind, and it was wonderful. Agha Sultan Sahab organizing this event last 32 years. Yes. Third event. Inshallah, we pray Allah gives him long life and he will continue up to 200. What do we need to take from this event today? Today it's really what I understood and what I learned from this event today. It was the unity between the Indian people. Never I was thinking like that. I had and I read a lot of coexistence in India, and I read in these different books that Indian is the symbol of coexistence, but I never was believing on it. Today I realize it, I accept it, I believe it. Many speakers have spoken about Iran, its role in current situation. Yes, they talk about Iran, but it's not because of Iran, but they talk about Iran because Iran wants to be against oppressors. He wants to support oppressed and poor people. He wants to support the people in Gaza, and he wants to bring the justice in our Middle East. What is your request to the Indian government in this? Actually, Indian are well known as following the justice and against the oppressors. We hope that also they are looking for justice, implementing the justice, not only in India, in all the world, and they have done. We appreciate them and we thank them. So how's the situation now in Iran? Is everything good? The situation in Iran is very good. Everything is good. The people are happy, and everything on the contrary. Yes. Thank you. सरजमीन बेंगलुरु से पूरी दुनिया के लिए अमन व इत्तेहाद का पैगाम, पीस और यूनिटी का पैगाम, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ उठ खड़े होने का पैगाम, हर हाल में मजलूमीन और मुतासिरीन का साथ देने, मजलूमीन और मुतासिरीन के साथ खड़े रहने, यकजहती का मुजाहरा करने का पैगाम। बेंगलुरु के हुसैन डे कन्वेंशन 2025 ने पूरी दुनिया को दिया पैगाम। हर एक की जबान पर फलस्तीन का तस्करा, हर एक की आंखों में गजा का खौफनाक मंजर और हर एक के जहन में 1400 साल कबल करबला का पस मंजर। बेंगलुरु के इस हुसैन डे इजलास में हर कोई फिक्रमंद। हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश, वक्त को फिर है करोड़ों में 72 की तलाश। हुर्रियत को आज फिर है इब्ने हैदर की तलाश, वक्त
को फिर है करोड़ों में 72 की तलाश। फलस्तीन के मजलूमीन को हुसैन का इंतजार है, गजा के बच्चों को हुसैन का इंतजार है। हुसैन डे के स्पीकर्स ने कहा कि 1400 साल कबल दुनिया को हजरत इमाम हुसैन की जितनी जरूरत थी आज भी उतनी ही जरूरत मौजूदा दौर को है। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों, पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में कत्ल किए जाने वाले मासूम सयाहों, फिरका परस्त के हाथों मॉब लिंचिंग में हलाक होने वाले मासूम अफराद हो, गर्ज के हर मुतासिरा, हर मजलूम के साथ खड़े होना इंसानियत का तकाजा है, क्योंकि आज इंसानियत खतरे में है। इस तरह दुनिया में जहां कहीं तशद्दुद, जंगो जदाल हो रहा है, उसकी मजम्मत करते हुए हुसैन डे के जरिए ये पैगाम दिया गया कि मुतासरीन मजलूमीन की हिमायत करना, जुल्म व तशद्दुद बर्पा करने वालों की मुखालिफत करना वक्त का तकाजा है। यही पैगाम हजरत इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी से हासिल होता है। 3 अगस्त 2025 बरोज इतवार बेंगलुरु के शिया आरामगाह में हुए हुसैन डे इजलास का उन्वान था सॉलिडेरिटी विथ ऑप्रेस्ड, मजलूमों के साथ यकजहती। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे बराए न्यू दिल्ली डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम मुल्लाही के खिताब से 33वें हुसैन डे का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश से आए मारूफ आलिम दीन मौलाना वसी हसन खान की सदारत में ये इजलास हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध मत के मजहबी रहनुमा मौजूद रहे। शिया, सुन्नी, बोहरा जमात के नुमाइंदे मौजूद रहे। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, गौरी बिदनूर के एमएलए पुट्टस्वामी गौड़ा, वजीर आला सिद्धरामैया के सियासी मुशीर और एमएलसी नसीर अहमद व दीगर सियासी लीडरों ने इस इजलास में शिरकत की। मारूफ फनकार गुलकार लकी अली, हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे, जर्नलिस्ट सौरभ कुमार शाही, अली अब्बास नकवी, सोशल एक्टिविस्ट सारा मैथ्यू व दीगर ने इस तारीखी इजलास में शिरकत की। मारूफ सहाफ़ी शकील हसन शमसी की निजामत में ये कन्वेंशन हुआ। हुसैन डे कन्वेंशन के कन्वेनर आगा सुल्तान गुज़िश्ता 32 सालों से इस बैन मजहबी इजलास को मुनाक़द करते हुए आ रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत और तालीमात की रोशनी में मौजूदा मसाइल का हल तलाश करना, समाज में, मुल्क और पूरी दुनिया में अमन व इत्तेहाद को मजबूत करना। दुश्मनी एक पल में होती है, दोस्ती के लिए जमाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनी एक पल में होती है, दोस्ती के लिए जमाने लगते हैं। लिहाजा आगा सुल्तान 32 सालों से दोस्ती, भाईचारे को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं। समाज में नफरत को खत्म करना, मोहब्बत को आम करना इस कोशिश का मकसद है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।